Good morning, student. Myself, your teacher, Pradeep Palaka. Student, this is the part 2 of lesson 1, 3 question of standard 7th. Student, in our first part, we have studied our first lesson, 3 questions up to the half of the lesson. We are going to continue and complete this lesson 1, 3 question today. So student, I hope you have understood the half of the lesson and you have practiced how to read and you have learned, you have studied. So student, let us we will begin today reading also, as well as we will learn this lesson. We will study. I will explain you. Okay, student. So before I continue with my next part of this lesson 1, I had given yesterday some homework, student. I hope you have done it. So student, let us discuss about that homework. So this is our lesson, student, 3 questions. So we know a certain king, he had thought that if he knew these 3 questions answer, then he will never fail in his life. Student, आमे जानिछु आमर ये 3 क्वेश्चन लेसन 1 रे आमे जो पढ़ुथुलु एठी आमे जानिछु गोटे महान राजा थिले से कौन तांग मन गोटे चिंता आसला जदि 3टी प्रश्नर उत्तर ताकू जदि जना थिबो से केबेले जीवन रे विफल हेबे नै आ सेथिपाई से कौन कले आ समस्त तांकर मेसेंजर मानकू तांकर दूत मानकू पूरा राज्य रे पठेले जेपरिक से मैंने आसी तांकर क्वेश्चन रो आंसर को दे पारिबे आउ से माने देले से कौन करथांता तांकू बहुत माने टंका से मानकू पुरस्कार रूप रे आउ राजा देई थांते आउ सेथि पई बहुत ज्ञानी व्यक्ति माने आसिले विभिन्न प्रकार आंसर देले किंतु राजा को ताहा संतुष्ट करि नथिला। सो स्टूडेंट सेतबेले से जने देख हर्मिट पाखकू जाइथिले आ हर्मिटटा से निज क्षेत्र से काम करिवार व्यस्त थिले आ किंतु राजा तांकू तांको काम रे सहाय्य करिया पई मागिले आ से जतबेले सहाय्य कले पुणी मझी मझी रे हर्मिट को से तार 3टी प्रश्नर उत्तर देबा पई से पचारुथिले किंतु हर्मिटटी मना माने न कहणु बा किछि न कहणु से चुपचाप थिले आउ सेतेबेले कोन हेची जणे आसिकी जणे धाई धाई दूर रु आसुची आउ सेटा हर्मिटटा कहिले आउ एतिकी रे आमे काली बंद करिथिलु। सो स्टूडेंट द फर्स्ट क्वेश्चन मु देथिली व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चन कहीं कि राजा यही 3टी प्रश्नर उत्तर जानिबा पई चाहुथिले मु प्रथम रे ही यार आंसर कहि देथिली द किंग वांटेड टू नो आंसर्स टू दिस 3 क्वेश्चन सो दैट ही विल नॉट फेल इन हिज लाइफ। ओके स्टूडेंट, से ए 3टी प्रश्नर उत्तर जानिथिले से केबेले जीवन रे विफल हेबेनी। आ सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट मेसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम दूत माने पूरा राज्य सारा पठा गले कहीं एठी नंबर 4 रो ऑप्शन होची करेक्ट टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन जो मान जदि जे क्वेश्चन रो उत्तर दे दियंती तांकू कोन करिवे रिवार्ड माने पुरस्कार देबे। ठीक अछि स्टूडेंट, आसो आमे आमर नेक्स्ट पार्ट 2 को आमे पढ़िबा। लेट अस रीड आवर पार्ट 2। ओके, दिस इज रीडिंग प्रैक्टिस। आई होप यू आर आल्सो रीडिंग एट होम। मु आशा करे स्टूडेंट तमे मध्य घरे
ରିଡ଼ିଂ କରୁଥିବ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏ, ସୋ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଏ ପରଫେକ୍ଟ ରିଡ଼ର। ସୋ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ରିଡ୍, ଆସ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମର ପାର୍ଟ 2। The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king tried by his work and the work he had done. The king tired by his work and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. "Forgive me," said the bearded man in a weak voice. When he saw that the king was awake, "I do not know you and have nothing to forgive you for," said the king. "You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you, because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant, and will order my sons to do the same. Forgive me." The king was very happy to have made peace with his enemy so easily, and to have won him over as a friend. He not only forgave him, but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get answer to his question. The hermit was on his knees sowing seed in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my questions, wise man." "You have already been answered," said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. "How have I been answered? What do you mean?" "Do you not see?" replied the hermit. "If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you, and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds. And I was the most important man, and to do me good was your most important business. Afterward, when the man ran to us,
the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. Remember then, there is only one time that is important, and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. The most necessary person is the person you are with at a particular moment. For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to person that person good, because we were sent into this world for that purpose alone. Okay, student, this is written by Leo Tolstoy and retold. So student, like this you can practice your reading. So let me explain you today our part 2 of the lesson 3 question. Okay student, so what is here written? When the king was helping to the hermit. Okay, आसंतु आमे ए पार्ट 2 रो मीनिंग को आमे जानि नेबा कोन एठी लिखा अछि. बहुत इंटरेस्टिंग स्टूडेंट, हाँ बहुत बढ़िया लेसन. आम लाइफ रे मध्ये एटा बढ़िया प्रैक्टिकल, काहे राजा जणे जानुथिला ए तीनोटी एते बड़ महान राजा तीनोटी प्रश्नर उत्तर जानिले से सफल हेबो जीवन रे. आमे जानले कोन आमे सफल हेबानी, आमे सेपरि काम कले कोन आमे सफल हेबानी, निश्चय हेबा. तो आसो आमे ए लेसन को भलो भाबे बुझी जेबा. आउ किंग turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed again to his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. देख जड़े लोक दौड़ी दौड़ी आसला, आ किंग आ राजा तांको देखु अच्छी से बियर्ड मैन दाढ़ी बाला लोक से कौन तांको आड़ को धाईक आसला. आ से कौन कर तार पेट को से जाबुड़ी धरिकी से धाई धाई आसला. आ राजा पाखरे आसी से बेहोश हो गला, फेंट हो गला, आ से अचेत होकरी तले पड़गला. सो द किंग एंड द हर्मिट removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और हर्मिट तांको हाथ बाहर कले, लुगा बाहर कले, देखिले तांको पेटरे बहुत बड़ माने आघात होइछि, घा हो जाइछि, माने माड़ो बच जाइछि. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा तांको से माड़ बाजुआ जगटा को वाश करदे, आउ हैंडकरचिप रे ताकू घोड़े देले, बांधी देले. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, किंतु ब्लडटा आउ फ्लो होची से बंद होनी, बही लगी. द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. राजा से ही घा को बा से ही क्षताक्त जगह को से रक्त न बहवा पर्यंत भलरे से घोड़े की बांधी देले. सो द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम. सो राजा कौन कले, से लोक जो भल लगिला तांकू से पानी बा किछि पीवा पाई मागिला, आ राजा तांकू फ्रेश वाटर शुद्ध जल आनी देले, आ तांकू पीवा देले. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल. द किंग विथ द हर्मिट हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. आती बेलू कौन है, सूर्यास्त हो गला, संध्या है, ठंडा पवन बहला, ठंडा टिके लगिला. तबे राजा और हर्मिट जो बनरे शांतिपूर्वक बास कर लोकटी आसिले, से लोक को हट से कुड़िया घर भीतर को नहीं गले, आ गोटे सर्जार शुआई देले. द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट. द किंग, tired by his work and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night.
When he awoke, it was several minutes before he could remember uh, where he was or who the strange beard man lying on the bed was. ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖ ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତାକ୍ତ ଜାଗାଟାକୁ ଭଲରେ ଏଇଟା କରି ମାନେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସେମାନେ ସବୁ ରାତି ହେଇଗଲା ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ଆଉ ଲୋକ ଯେ ଆଘାତ ପାଇଥିବା ଲୋକଟି ସେ ତାର ହୋସ୍ ଆସିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଉଠିଲେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ ସେ ସେତେବେଳେ କହୁଛି କ'ଣ କହୁଛି ଫରଗିଭ୍ ମି ସେଡ୍ ଦ ବିୟର୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ଏ ୱିକ୍ ଭଏସ୍ when he saw that the king was awake ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଉଠିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଏ ବିୟର୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ଟା ଦାଢ଼ି ଥିବା ଲୋକଟି ଯିଏକି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ କହୁଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ରାଜା ହେ ରାଜା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ତ ରାଜା କ'ଣ କହୁଛି ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ନୋ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଭ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଫରଗିଭ୍ ୟୁ ଫର୍ ସେଡ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଆଉ ରାଜା କହିଲେ ବାପରେ ବାପ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିନି କ'ଣ ମୁଁ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି ଭୁଲ ମୋର ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କଲ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦେବି ଦେନ୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ନୋ ମି ବଟ୍ ଆଇ ନୋ ୟୁ ଆଇ ଆମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏନିମି ଅଫ୍ ୟୁଅର୍ସ ହୁ ସୋର୍ ରିଭେଞ୍ଜ ଅନ୍ ୟୁ ବିକଜ୍ ୟୁ ପୁଟ୍ ମାଇ ବ୍ରଦର ଟୁ ଡେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଜ୍ଡ ମାଇ ପ୍ରପର୍ଟି ହେ ମହାରାଜ ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ହେଲା ମୁଁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯିଏକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ରିଭେଞ୍ଜ ନେବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେବି ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି ସ୍ୱର କରିଥିଲି କାରଣ ତୁମେ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲ ଆଉ ମୋର ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁମେ ଆଉ ସିଜ୍ କରିଦେଇଥିଲ ତାକୁ ତୁମେ ନେଇଯାଇଥିଲ I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ସେ ହର୍ମିଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଅଛ ଆଉ ତମେ ସେଠିକି ଯାଉଛ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ମନରେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ସେ ବାଟରେ ମାରିଦେବି But the day passed and you did not return, so I left my hiding place and I come upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. देखो एठी माने गोटे इंटरेस्टिंग जिनस होउछि एठी तांको राजांकर जे कि एनिमी हां शत्रु राजांको मारिया पई से जगी जगी रहले किंतु संध्या हे गलानी सेथि पई से तांको लुचिबा स्थान ठारू से बाहरिले आउ से जाके राजांको मारि जिया पूर्वरु तांको बॉडीगार्ड गुडा कोठिया थिले आउ बॉडीगार्ड माने तांको चिनि जाइथिले आउ सेथि पई से माने तांको आउ तांको देहरे आघात करिथिले मारिथिले सेथिपाई तांको देहरे तांको पेटरे क्षत होइथिला बा जे कोनोसी धारी अस्त्र तांको पेटको मारिथिले सो आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैव नॉट ड्रेस माय ओन मु तो बॉडीगार्ड थारु मु रक्षा पाई गली सेथु उद्धार हे गली किंतु माड़ बाजिथिबा हेतु जदि तमे मो ये क्षत स्थान को बांधि नथिबो ड्रेस कर नथिबो माने मते मो क्षत स्थान रे बांधि नथिबो मते केयर कर नथिले मु आजी मरि जाई थांती पुणे आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माय लाइफ मु तुमको मारिवा पई चाहली किंतु आपण मते मोर जीवन को बंचैलो नाउ इफ आई लिव I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. किंतु मते बंचै देलो महाराज एबे मु जदि बंचिकी अछि मु आपणकर सेवा करिबी मु गोटे तमरो विश्वास पूर्ण दास हेबी आ मोर पिला छुआ मान को मध्य मु आदर्श देबी जे एपरी राजांकर दास बनिकी रुह आ सेथिपाई महाराज मते क्षमा कर दियो फॉरगिव मी क्षमा कर दियो द किंग वाज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजीली एंड टू हैव ओन हिम ओवर एज ए फ्रेंड राजा बहुत खुशी हो गले
आउ से भाविले जे मोर शत्रु ठारे मु केते सहजरे हाँ मोर ए काम पाए तांको सहित मु शांति स्थापना करि पारिछि आ ताकू मु मो शत्रु हेले सुद्धा मोर निजर सांग हिसाब रे मु ताकू बनै पारिछि। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम but said he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property। राजा खुशी हो जाए तांको कहले मु तुम खाली क्षमा करनी मु मोर दास मान पठाऊँगी मु डॉक्टर को पठाऊँगी तुम भल हो तुम जत्न नेबे आउ तुमर जतेक संपत्ति मु नहीं सबू माने फेरई देवी। लिविंग द wounded man the king went out of the hut and looked round for the hermit। एबे से क्षताक्त लोक तार जो शत्रु को विदाय करदेला परे राजा बाहर को बारी देखुंती कहीं ये हर्मिट कुआड़े गले। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज sowing his seed in the beds that had been dug the day before। The king went up to the hermit and said, for the last time I beg you to answer my question, wise man। हाँ एबे तो मु जीवी हे वाइज मैन हर्मिट एबे तो मते मोर ये तीनोटी क्वेश्चन प्रश्न रो उत्तर दे दियो ताकि मु संतुष्ट रे घर को फेरी पारिबी। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर। देखो स्टूडेंट एठी said the hermit still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him। जतोले राजा तांको पचारे देखिले हर्मिट कौन करथिले खेतरे से कौन करथिले बिहन बुणुथिले जोटा कि ता पूर्व दिन से माने खेत को सजई थिले खोली थिले आउ सेतेबेले हर्मिटटा ठियाई कहूची तमे तो तुमर प्रश्नर उत्तर पाई जाई अछ। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड व्हाट डू यू मीन मु केमिति मोर प्रश्न को पाई सारी अछि हाँ आपण कौन कहउछंती। डू यू नॉट सी रिप्लाइड द हर्मिट तुम कौन देखु न। इफ यू हैड नॉट पिटिड माय वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me you would have gone away। then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me। आ कौन देखी पारुन जानी पारुन जदि तुमे मो प्रति दया कर न थांतो मो दुर्बलता प्रति आउ काली जदि तुम मते हेल्प कर न थांतो मो पाए एटा खोली न थांतो तो आपण रिटर्न नहीं पळै जाई थांते पुणी आ बाटरे से लोकटा अटैक करि थांते पुणी सेतेबेले आपण कोन भाबी थांते आहा हा मु जदि हर्मिट पाखर रह जाइथिले भल ही थांता मु रिटर्न ही गली कोन एडा भाबी थांते पुणी ना। सो एडा होची मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड। तमे जो मते साहाय्य करूथिलो आ जो समय रे तमे मते हेल्प करथिलो सही समयटा ही इम्पोर्टेंट समय अटे बुझिलो। And I was the most important man and to do me good was your most important business। मु होची सेतेबेले तमर जने इम्पोर्टेंट व्यक्ति आ मो पाई जो उत्तम काम करथिलो मते जो हेल्प करथिलो मो काम जो सहाय्य करथिलो सेडा होची गोटे मुख्य जिनिस हैला। Afterwards when the man ran to us the most important time was when you were caring for him। एबे देखो एठी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम से जो लोक आसिला सेतेबेले कोन तांकू आमे केयर करिवार थिला तांकू आमे जत्न नेबार थिला। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस हिज वुंड ही वुड हैव डाइड विथआउट हैविंग मेड पीस विथ यू। सो ही वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। देखो से लोक को जो वुंड को ड्रेस कलु क्षत स्थान को आम भलरे बांधी देलु सेटा होची मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम। आउ जो काम आम कलु आ सहित जो माने भल काम कलु आ से लोकर होचंती गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट लोक आम पाई सेतेबेले आउ जो काम आम कलु सेटा होची मोस्ट इम्पोर्टेंट काम थिला। देखिलो So remember then there is only one time that is important and that time is now। So सब बड़े मन रख महाराज
आ वर्तमान ही सबुठू इम्पोर्टेंट समय है। एबे जहाँ आमे करूछु एबर जो टाइम आमे पाइछु यही टाइम ही यही समय ही वर्तमान आम पाई मुख्य। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। एटा ही समय आम पाइछु आ ए समय ही जहाँ करिवार कथा आमे करि परिबा। एबे नेक्स्ट द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else। आ सबुठु इम्पोर्टेंट व्यक्ति किए होचंती जहाँ कि वर्तमान आमे भेटी अछु, जहाँ कि वर्तमान आमे जहाँ सहित कि आमे कार्यकलाप करूछु, जहाँ सहित आमे रही अछु, कहीं आउ अन्य समय रे आमे से लोक को आउ आमे भेटी पारिबा ना अन्य मान को आमे भेटी पारिबा ना नहीं आमे जानिनु। So the most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose only। आ मुख्य काम आम जीवन रे हैला जो व्यक्ति आम सहित अछंती तांको प्रति आमे कोन करिबा उत्तम व्यवहार करिबा, जेति की भलो आमे ता करिबा। आ सेति पई ही तो आमे ये संसार रे अछु। सब बुझिले स्टूडेंट, एठी आमे केते बड़ो महान लेसन को आमे माने शिखिबा को पाइलु। सो राजार तीनोटी प्रश्न थिला कौन कौन स्टूडेंट? राजार तीनोटी प्रश्न हैला आउ कोउटा होची मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, आउ द्वितीय प्रश्न थिला केउ व्यक्ति होची मोस्ट इम्पोर्टेंट तांका पाई। तृतीय बड़ क्वेश्चन थिला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थिला केउ कामटी सबुठु इम्पोर्टेंट तांका जीवन रे। सो एठी हेर्मिट टी तांकर उदाहरण माध्यम से जो टाइम माध्यम से कहीदे अच्छा सबुठु मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम होची नाउ माने वर्तमान। आम पाखे जो टाइम वर्तमान अच्छी से ही टाइम ही सबुठु इम्पोर्टेंट। आउ कोटा इम्पोर्टेंट व्यक्ति तांक जीवन रे आउ जो माने कि वर्तमान तांक सहित अछंती देखला आम पाख आखरे बा आम सहित जी अछंती से माने ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति। आउ सबुठु इम्पोर्टेंट काम कौन? आउ जो माने आम पाखरे अछंती तांको प्रति आमे भलो काम करिबा, तांको प्रति आमे सहाय्य करिबा, आउ सबुठु भलो जिनिस तांको पई करिबा, आउ जहा किछि करिबा सबुठु भलो हेथिबो, आउ सेटा होछि मुख्य काम। वाओ, वंडरफुल लेसन, वंडरफुल क्वेश्चंस एंड वंडरफुल आंसर। हाँ, एते महान विचारर प्रश्न आउ केते बढ़िया आंसर आमे मध्य पाइछु। सो स्टूडेंट जदि आमे ए तीनोटी क्वेश्चन रो आंसर भलिया आमे जदि आम लाइफ रे इम्पोर्टेंट देबा वर्तमान रो समय को आउरी आमर निज पाखरे थिबा लोकन को माँ बापा भाई भौणी शिक्षक बंधु पड़ोसी जे हूँ आउ जदि तांको प्रति आमे उत्तमता काम करिबा जो काम कि आमको माने आमे करिवार कर्तव्य सेटा जदि आमे करि पारिबा आ सेतेबेले आम जीवन रे आमे केबेले से राजा जेमती चाहूले सेमती से केबेले विफल ही न थांते सेमती आमे मध्य के विफल हेबा नहीं सब बेले सफल हेबा। वी विल डेफिनेटली मीन्स गेट सक्सेस इन आवर लाइफ। सो मे गॉड ब्लेस यू। जते स्टूडेंट ए पाठटी पढ़िल ए लेसन 1 बढ़िया लेसन आम स्टैंडर्ड 7th लेसन 1 आउ ए लेसन रे आमे माने बहुत माने नॉलेज पाई अछु आउ ए नॉलेज को आम नॉलेज रे रखी ताकू प्रैक्टिकल रे आमे जीवा। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन द 3 क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, so here some of the work I will give. Complete the following sentence by adding the appropriate part of this sentence given in the box. देखो स्टूडेंट ए बॉक्स रे 5टी सेंटेंस रो पार्ट दिया जाइछि। एटा हम स्टैंडर्ड 7th रो स्टूडेंट माने आकु लेखिकी गोटे पेपर रे तार फोटो उठेई आमको ग्रुप रे छाड़ंतु आउ एथि द्वारा आम जानि पारबु जे आम स्टूडेंट माने आम लेसन को पढ़ी अछंती आउ भलरे बुझी अछंती। सो स्टूडेंट आउ जो रेस्ट जति की रही अछि
working with answer the following question and other workings, all exercises we will do in our main class after lockdown. So I wish and I hope you have understood and you have learned this lesson. So thank you student for spending time with us and learning this wonderful lesson. See you. Bye.